Hello everyone. Welcome back to Madam H. Well, in today's video, we are going to unfold certain mysteries of the India's ancient past. Some mysteries are hidden in deserts, some beneath the oceans. But in India, one of the greatest secrets were buried quietly under a small village in Tamil Nadu called Kiladi. Here, broken pots speak louder than words. Brick walls whisper forgotten stories, and every excavation pulls us closer to rewriting our history. Is Kiladi just another archaeological site or the missing link that proves an ancient, thriving Tamil civilization that existed long before? Let's unfold the mystery together. So well, as you can all see from the thumbnail as well as from the introduction that I have given you, in this video we are going to talk about Kiladi, that is a place in Tamil Nadu, and recently some excavations and some discoveries have been made. However, these excavations were started in the year 2014 and 15, but there has been some controversy going on with the topic. The topic has now become a political subject. However, we shall not stick ourselves to the political subject and the political intricacies of the topic. We'll just stick to what can be asked in the CLAT exam and how is it relevant to our exam. Okay, so see what has happened. I'll just give you a brief introduction or a brief story of what has actually happened and why this topic is again in the news. Clear? So see what happened is, in the year 2014 and 15, the place in Tamil Nadu, that is Kiladi, it is also written as Kizadi. Z is used, but it's not pronounced as Kizadi, it's Kiladi. The Z alphabet, it's little different in Tamil language. I, being a North Indian, cannot pronounce it. So if any of the South Indian student is seeing, or if any person, I am not generalizing South India as a whole, if any student from Tamil Nadu is seeing this video, please pardon my pronunciation. I am trying to learn, but still being a North Indian, it's little difficult for me to pronounce. So I'll stick by the word Kiladi for future references in the video. Clear? So what happened in the year 2014 and 15, the excavation started in Kiladi. अब हुआ क्या कि वहाँ पे जो भी एक्सकेवेशन हुआ फेज़ 1 और 2 का, जो भी वहाँ से रिपोर्ट आई, that report was put before the table, and the Archaeological Survey of India said that we are not satisfied with this report, and so the archaeologist was transferred. Later on, another archaeologist was appointed and the excavation resumed. However, Madras High Court also intervened after the battle began, and Madras High Court directed कि जो स्टेट तमिलनाडु स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो भी अब आर्कियोलॉजिकल सेंट्रल जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसके साथ मिलके काम करेगा. क्लियर? अब हुआ क्या कि अब जो फिर से रिपोर्ट आई, द आर्कियोलॉजिस्ट हु वाज ट्रांसफर्ड, उनको बोला गया दैट दिस रिपोर्ट इज़ नॉट साइंटिफिकली backed and you need to revise this report. Now the archaeologist says that I stick by my report and whatever findings I have found out, and now again a tussle has been generated between that particular archaeologist, will study the name, will remember the name, and the Archaeological Survey of India regarding the veracity and regarding the scientific backing of the report. See, मैंने स्टोरी बता दिया है, बट आपको स्टोरी से पॉलिटिक्स से कोई बहुत आपको लेना देना नहीं है. यू जस्ट हैव टू जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन वाई दिस हैज़ अगेन कम अप. ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें डेल्व मत करना, जस्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान रखना. इफ़ क्वेश्चंस कम यू कैन सिंपली आंसर फ्रॉम दीज प्लेसेज, राइट? So as you all can see clearly from here that Kiladi excavating the past. ठीक है, ये कब का न्यूज़ है देखो, जून 29, 2025 का है. ठीक है, हाउ अनअर्थिंग Kiladi बिकेम अ रो ओवर इंडियाज़ पास्ट. ठीक है, तो डाइवर्जेंस हो गया है थोड़ा सा, इसको लेके थोड़ा सा इशू हो गया है. ठीक है, और ये थोड़ा सा इसको लेकर के जो भी है वो इश्यूज़ हैं उस पर हम नहीं जाते हैं. विल स्टिक बाय द न्यूज़. अब देखो हमें क्या याद करना है, यहाँ पे जो साइट है, जो Kiladi का साइट है उसका नाम है ये. ठीक है,
पल्ली चंथाई टीडल, ठीक है। आई मे बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिंग, आई अगेन से सॉरी फॉर दैट, बट हमको आंसर में मार्क करके आना है, वहाँ पे बोल के नहीं सुनाना है, ठीक है। तो पल्ली चंथाई टीडल इज़ द नेम ऑफ द साइट। अब देखो किलड़ी है क्या। किलड़ी इज़ अ स्मॉल विलेज, इट इज़ एन आर्कियोलॉजिकल साइट विच इज़ सिचुएटेड इन तमिलनाडु, ये याद करना है। एंड ये जो वहाँ पे एक्सकवेशंस हुई हैं, वो बोला जा रहा है दैट दीज एक्सकवेशंस आर फ्रॉम दी संगम एज। अब आपको यहाँ पे क्या याद करना है कि ये संगम एज से रिलेटेड है। हो सकता है वो आपको ऑप्शंस में पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, इंडस वैली एज, हरप्पन एज, कुछ भी दे सकता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट किलड़ी इज रिलेटेड टू योर संगम एज। क्लियर। अब जो किलड़ी है वो हमारा कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन द शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, और ये वैगई रिवर के पास, वैगई रिवर यहाँ से पास होती है, वैगई रिवर के पास फ्रॉम मदुरई, 12 किलोमीटर्स फ्रॉम मदुरई ये सिचुएटेड है। तो आपको क्या क्या याद करना है? संगम एज याद करना है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु याद करना है, और वैगई रिवर यहाँ से पास करती है वो याद करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिला। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमें। पॉटरी मिली है, ठीक है, मैं पिक्चर्स आपको दिखाऊंगी। पॉटरी मिली है, पॉट शेड्स मिले हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कॉपर आर्टिकल्स मिले हैं, आइवरी बैंगल्स और आइवरी डाइस मिला है, सन और मून का पिक्चर मिला है। तो इससे एक पता चलता है कि जो किलड़ी के लोग थे, जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स थे या जो सिविलाइजेशन में जो लोग रहते थे, वो उनको कुछ एस्ट्रोनॉमिकल सेंस था, दे बिलीव्ड इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। फिर हमें टेराकोटा सील्स मिली हैं, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स भी मिले हैं, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको पिक्चर दिखा देती हूँ फॉर योर रेफरेंस, ठीक है। अब देखो ये अर्बन सेटलमेंट है, यहाँ से देखो हमें कुछ घर जैसा स्ट्रक्चर दिख सकता है, ठीक है। ये हमारे देखो यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट की ये पिक्चर्स हैं। क्लियर। अब देखो ये क्या है? ये बेरियल अर्न्स है। बेरियल अर्न्स मतलब यहाँ पे बेरी करने के लिए ये एक अर्न टाइप का चीज़, मतलब एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें लोगों को बेरी कर सकते हैं, ये बेरियल अर्न्स है। अब देखो ये ग्राफिटी, ग्राफिटी मतलब ड्राइंग से समझ लो, ये देखो कुछ फिश जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जो यहाँ पे ग्राफिटी मिल रही है, दैट ग्राफिटी रिजेंबल्स, इट रिजेंबल्स द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि जो हमें यहाँ ग्राफिटी मिला है, इट रिजेंबल्स दैट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो जो पॉटरी मैं कह रही थी, आई विल जूम इट अ लिटिल फॉर यू। देखो रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिली है हमको यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे देखो संभाल करके रख दिया गया है, ठीक है। और ये देखो कुछ टेराकोटा स्ट्रक्चर्स मिले हैं, ये कुछ ऐसा पाइप जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिला है। क्लियर। तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, आप इसको थोड़ा सा याद कर सकते हो क्या क्या मिला है। मे बी आपसे ऑप्शन देके पूछे दैट विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नॉट बीन फाउंड, तो मे बी वो बोल दे कि हमें वहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ हमें अर्बन सेटलमेंट नहीं मिला है, ठीक है। तो आपको जानना पड़ेगा, नहीं हमें अर्बन सेटलमेंट भी मिला है, हमें आइवरी प्रोडक्ट्स मिले हैं, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं, कॉपर आर्टिकल्स मिले हैं, और मैं ये भी बताना चाहूँगी वहाँ पे एक बच्चों का स्केलेटन भी मिला है, ठीक है। अब देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है याद करने के लिए इज़ दैट जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वहाँ पे वो तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, ठीक है। तो वो हो सकता है आपसे पूछ ले कि कौन सी स्क्रिप्ट है, पाली है, प्राकृत है, संस्कृत है, कौन सी स्क्रिप्ट है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट द इंस्क्रिप्शंस दैट हैव बीन फाउंड, दे आर फाउंड इन तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ठीक है। ये बिल्कुल प्लीज़ इसको याद कर लेना, दे आर फाउंड इन तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब देखो हमें दो आर्कियोलॉजिस्ट का नाम याद रखना है। फर्स्ट इज के अमरनाथ रामाकृष्ण, इनको ही ट्रांसफ़र किया गया है और इनको ही बोला गया दैट यू नीड टू रिवाइज योर रिपोर्ट। हाउएवर ही सेज दैट आई बैक माई रिपोर्ट एंड आई एम साइंटिफिकली बैकिंग इट एंड आई स्टिक टू बाय माई रिपोर्ट, ओके। और इनके ट्रांसफ़र के बाद जो सेकेंड आर्कियोलॉजिस्ट जिन्हें अपॉइंट किया गया था उनका नाम था श्री PS श्रीरामा, ठीक है। तो ये दोनों आर्कियोलॉजिस्ट के आपको नाम याद रखने हैं। अब देखो वहाँ पे कुछ ऐसे नेम्स पाए गए हैं तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, सथन, एसिरी, कथिरान, इलाबू। आई डोंट नो हाउ टू स्पीक दीज वर्ड्स इन देयर ट्रू सेंस, बट आप इसको ऐसे इंग्लिश में ऐसे ही लिखा है, आप इसको ऐसे थोड़ा सा पढ़ के जा सकते हो। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया, बट ये ज़रूर याद रखना है कि तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिले हैं, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको किलड़ी के बारे में जानना ज़रूरी है, बिकॉज दिस हैज़ नाउ बिकम a वेरी लीडिंग टॉपिक राइट नाउ। और ये आपको इसकी साइट याद रखनी है कि ये किलड़ी के जो साइट का नेम है ये आपको याद रखना है, ठीक है। एंड इट हैज़ लिंक्स विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन और वेदर नॉट, ये सब हमें आगे चल करके पता चलेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट वी हैव ट्राई टू अनफोल्ड द मिस्ट्रीज ऑफ किलड़ी, एंड स्टे ट्यून so that we follow this news and we bring
to you more such interesting facts and figures that will help you to slay your CLAT exam. So tune in to Madam H. Please subscribe, like and share this channel so the other learners can also get benefit. This initiative is absolutely free of cost and I try my best to bring you the best. Okay, so with Madam H, you've got this. Thank you so much. Please share, subscribe and stay tuned for more.